ہم تمامی حضرات کے دلوں کو روشن و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن رسول اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے اس آیت مبارکہ پر گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درد و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے دو چیزیں عطا فرمائی،
ایک نور عطا فرمایا اور ایک کتاب مبین عطا فرمائی. علماء فرماتے کہ نور سے مراد نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب توجہ بالکل توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ آیت چھوٹی ہے، مگر اس دور کے دو بڑے اعتراضوں کے جواب ایک ہی آیت کے اندر موجود ہے. جو اس وقت اعتراض کیے گئے تھے نا، اس وقت کے دو بڑے اعتراض، اس کے جواب اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں. کیونکہ رب کا کلام ہے، اتنا جامع ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں دو اعتراضوں کے جواب دے دیے ہیں. نمبر ایک، پہلا اعتراض یہ تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا لست مرسلا، کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، آپ اللہ کی طرف سے آئیں یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ رسول ہیں. یہ پہلا اعتراض تھا جو اس وقت کچھ لوگوں نے کیا تھا، کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ پیغام رساں نہیں ہیں، ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ مرسل ہو، رسول بن کے آئے ہو. بالکل انکار کر دیا. اور ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے انکار تو نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ ہم مانتے تو ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ میں اور ہم میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم رسول نہیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ کا کھانا ہمارا کھانا، آپ کا پینا ہمارا پینا، آپ کا چلنا ہمارا چلنا، سب برابر ہے. معاذ اللہ. یہ تصور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جماعت کو ایک آیت کریمہ میں جواب دے دیا. ایک آیت کریمہ کے اندر کہ سنو، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہو، بھیجے ہوئے نہیں ہو، کان کھول کر سن لو. قد جاکم من اللہ، یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ پہلا جواب تھا. پہلی جماعت کو پہلا جواب، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، سنو، رب نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ من اللہ کا لفظ ہے. کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور جو دوسرا اعتراض تھا کہ ہم مانتے تو ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہماری طرح، اس کا جواب قرآن نے دیا. من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور بن کے آئے ہیں. کیا بن کے آئے ہیں؟ نور بن کے آئے ہیں. اور ایسا نور کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. نور ایسے کہ آپ جیسا کوئی نوری نہیں، اور بشر ایسے کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور تھے، مکمل بشر تھے. سراپا نور تھے، مکمل بشر تھے. اب اس آیت کریمہ نے دو بڑے اعتراض کا جواب دے دیا ہے. دو بڑے اعتراض کا جواب. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
حدیث پاک میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ حدیث سنی آپ نے؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد ہوا اولو ما خلق اللہ العرش، اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک حدیث پاک ہے جس میں رب کے رسول نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا. اب 4 حدیث جمع ہو گئی. پہلی یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. دوسری یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تیسری یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا. چوتھی یہ کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ کس کو پیدا کیا؟ نور کو، قلم کو، لوح کو کہ عرش کو؟ تعجب ہے نا. کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری چیزیں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ نور کو پہلے پیدا کیا؟ ایک حدیث میں قلم کو پہلے پیدا کیا، ایک حدیث میں لوح کو پہلے پیدا کیا. قلم کا کام ہے لکھنا، لوگ کہتے ہیں تختی کو جس پر لکھا جائے، بورڈ، تختی، لوح. ایک حدیث میں عرش کو پہلے پیدا کیا. تو اب سنیے اس کی تشریح اہل سنت کے علماء کے زبانی، جو میں پڑھ کے آیا ہوں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. الفاظ مختلف ہے، معنی سب کے ایک ہے. بولو سبحان اللہ. الفاظ مختلف ہے، معنی سب کے ایک ہے. اور آسان کر دوں، صفت سب کی الگ ہے، موصوف سب کا ایک ہے. صفت سب کی الگ ہے، موصوف سب کا ایک ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ قلم بھی حضور ہے، لوح بھی حضور ہے، عرش بھی حضور ہے. کیوں؟ اب تشریح بھی سن لیجئے. قلم کا کام ہے، پین کا کام ہے لکھنا، فیض دینا، فیض دینا. لوح کا کام ہے فیض لینا، اپنے اوپر لکھوانا. 2 کام ہو گئے. پین، قلم کا کام ہے لکھنا، لوح کا کام ہے اپنے اوپر لکھوانا، بورڈ کا کام، تختی کا کام، اپنے اوپر لکھوانا. مطلب ہوا قلم فیض دیتا ہے، لوح فیض لیتی ہے. قلم فیض دیتا ہے، لوح فیض لیتی ہے. اب میں نے کہا تھا آپ سے کہ الفاظ الگ ہے، معنی سب کے ایک ہیں. کہ قلم بھی میرے آقا، لوح بھی میرے آقا ہے. قلم سے مراد حضور ہے. قلم کا کام ہے فیض دینا، لوح کا کام ہے فیض لینا. اب میرے آقا قلم کیسے ہیں، لوح کیسے ہیں، وہ سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے فیض لیا، ساری چیزیں لی، آپ ہوئے لوح. آپ کیا ہوئے؟ لوح. کیونکہ تختی فیض لیتی ہے اور آپ نے فیض لیا کس سے؟ رب سے. فیض لیا کس سے؟ رب سے. تو آپ بنے لوح اور یہی فیض لے کر امت کو دیا تو آپ بنے قلم. آپ بنے قلم. رب سے لیا لوح، امت کو دیا قلم. کیا مطلب؟ کہ نبی پاک قلم بھی ہے، لوح بھی ہے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، ڈاکٹر اقبال سمجھ گئے تھے.
डॉक्टर इकबाल समझ गए थे, इसीलिए आपने कहा था लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी आपने रब से फैज लिया, आप लोह बने, और उम्मत को फैज दिया, आप कलम बने। एक हदीस और रह गई जिसमें इरशाद हुआ था अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। अब अर्श किसको कहते हैं? डिक्शनरी उठाएं आप, लुगत, उसमें लिखा अर्श को अर्श इसलिए कहते हैं कि वो ऊंचा है, इससे ऊंचाई पर कोई नहीं। अर्श बुलंद है, इससे बुलंदी पर कोई नहीं, इसलिए उसे अर्श कहते हैं। अर्श कहते हैं उसे, बुलंद चीज को अर्श कहते हैं, बुलंद चीज को अर्श कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, मेराज की रात जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया तो मेरे आका के कदम अर्शे आजम से भी ऊपर गए, अर्शे आजम से भी ऊपर गए। अब जब अर्शे आजम से ऊपर मेरे आका के कदम गए तो अब आप बताएं, अर्श ऊंचा या मेरे आका ऊंचे? बुलंद कौन हुआ? बुलंद कौन हुआ? अर्श को अर्श कहते इसलिए थे कि वो ऊंचा है। और मेराज की रात अर्श भी पीछे रह गया, मेरे आका आगे चले गए, मेरे आका आगे चले गए। एक और हदीस है जिसमें रब के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, अक्ल को पैदा किया, और अक्ल भी मेरे आका है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? इस पर सबका इत्तेफाक है कि अक्ले कुल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अक्ले कुल। मेराज की रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसी अक्ल को झुकाकर, तलवों को चूम कर, गोया के अक्ल की खैरात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी और समझा दिया ये सब आपके सदके में है। तो अब बताइए, अक्ल कुल ने जब आपका कदम चुमा हो तो उस अक्ल से बड़ी अक्ल कौन? नबी पाक की जात। तो अक्ल भी हुजूर है, सुपुर्द कर दिया सब। उलमा फरमाते अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले मेरे आका के नूर को पैदा फरमाया। मगर इस आयत करीमा के अंदर चंद बारीकियां हैं। मेरे पूरी पीरो मुर्शिद ने चंद बातें बयान की हुजूर शेखुल इस्लाम ने, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब आ गया। कौन आ गया? सवाल है ना, कौन आ गया? कौन आया? हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते अगर मैं ये कहूं सैयद साहब आ गए, मतलब क्या होगा? आप जितने बैठे हैं ना, वो मतलब क्या निकालेंगे? मैं अगर ये कहूं कि सैयद साहब आ गए तो आप क्या मतलब निकालेंगे? कहीं थे वहां से आए, कहीं तो थे वहां से आए। तवज्जो चाहूंगा फिर लफ्जों पर, कहीं थे वहां से आए। अब आप मुझे ये बताएं कि जब सैयद साहब आ गए का लफ्ज आपने सुना तो आप समझ गए कहीं थे वहां से आए, यानी पहले कहीं मौजूद थे वहां से आए। कोई ये नहीं समझेगा कि अभी पैदा हुए हैं, वो बेवकूफ है जो ये समझे कि पैदा हुए, क्योंकि यहां पैदाइश की बात नहीं हो रही है, यहां आमद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आमद की बात हो रही है। आए मतलब कहीं थे। अब सवाल आपसे है, सबसे है, जब ये आने वाला आया तो कहीं था वहीं से तो आया। अब सवाल यह है कि कहां से आया? ये आने वाला कहां से आया? कहीं था वहां से आया, मगर सवाल है कहां से आया? तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढोगे ना, ढूंढने से नहीं मिलेगा। मगर इससे पहले मैंने तशरीह कर दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया।
एक हदीस जिसमें इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गील की मंजिलें तय कर रहे थे। हुजूर ने यह नहीं फरमाया मैं आदमी था, नहीं, मैं बशर था, यह नहीं कहा, मैं नबी था। पता चला नूर मुस्तफा नबूवत की शक्ल में जगमगा रहा था। उस वक्त जगमगा रहा था जब अबुल बशर भी नहीं आए थे, जब आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए थे। गोया कि न जब जमीन थी ना आसमान था, न सूरज की चमक थी, न चांद की चांदनी थी, न सितारों की चमक थी, न दरियाओं की रवानी थी, कुछ भी नहीं था। उस वक्त नूर मोहम्मदी जगमगा रहा था। तो अब सवाल यह होता है, जब कुछ भी नहीं था तो यह नूर आया कहां से? मशरिक से आया? मैं कहूंगा नहीं, मशरिक था ही नहीं। मगरिब से आया? कुछ था ही नहीं। आसमान से आया? आसमान था ही नहीं। जमीन से आया? जमीन थी ही नहीं। मक्के से आया? मक्का था ही नहीं। मदीने से आया? मदीना था ही नहीं। अलगरज अरब से आया? अरब था ही नहीं। अजम से आया? अजम था ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। सबसे पहले तो नूरे मोहम्मद। तो सवाल यह है, आया कहां से? तो इसका जवाब यहां वहां मत तलाश करो, कुरान खुद कह रहा, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया है। यह नूर कहां से आया? अल्लाह की कुर्ब से आया है, कुर्बे खास से आया, आलम लाहौती से आया है, आलम कुद्स से आया है। पता चला यह नूर कुदसी है, यह नूर लाहौती है, यह नूर रब तबारक व ताला के कुर्बे खास से आया, अल्लाह की बारगाह से आया। जब ये नूर वहां से आया है तो अब ये नूर मक्की नहीं है, ये नूर मदनी नहीं है, ये नूर अरबी नहीं है, ये नूर हाशमी नहीं है, ये नूर मुत्तलबी नहीं है, ये नूर करशी नहीं है। जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं ना, आप सोचोगे जब ये नूर कुछ भी नहीं है तो हम नारे क्यों लगाते, मक्की की आमद? बुलंद आवाज से बोले, मदनी की आमद, हाशमी की आमद, मुतलबी की आमद, करशी की आमद, अरबी की आमद। अब सवाल कर सकते हो हजरत, हम तो नारे लगाते हैं मक्की की आमद, मदनी की आमद। आप कह रहे हो ये नूर मक्की नहीं था, ये मदनी नहीं था, ये अरबी नहीं था। तो जवाब सुने हुजूर शेखुल इस्लाम का। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, हां, तवज्जो चाहूंगा सबकी, मैं बात नूर की कर रहा हूं। नूर मक्की नहीं था, बशरियत मुस्तफा मक्की थी। नूर कुदसी था, नूर लाहौती था। नूर कुदसी था, नूर लाहौती था। बशरियत मुस्तफा आमिना की गोद में जुला रहा था। बशरियत मुस्तफा मदनी थी, बशरियत मुस्तफा करशी थी, बशरियत मुस्तफा हाशमी थी, बशरियत मुस्तफा मुत्तलबी थी। नूर कुदसी था, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की कुर्बे खास से आए थे। अलगरस हमारा अकीदा बिल्कुल क्लियर है। हमारे से मुराद अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि नबी पाक सरापा नूर थे, मुकम्मल बशर थे। ऐसे बशर के आप जैसा कोई बशर नहीं, ऐसे नूर के आप जैसा कोई नूरी नहीं, आप जैसा कोई नूरी नहीं। जिब्रील अमी से हुजूर ने एक दिन पूछ लिया था, ए जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, उम्र का तो अंदाजा नहीं है, मगर एक सितारा है जो इतने सालों बाद चमकता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। कितनी मरतबा? 72,000 मरतबा। जब नबी ये पाक ने सुना ना तो मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे, जिब्रील वो सितारा में ही था, वो सितारा में ही था। अब जिब्रील अमी आम शख्स नहीं है, याद रखना, नूरी मखलूक के सरदार है, नूरी मखलूक के सरदार हैं। जिब्रील अमी ने नबी पाक को 72,000 मरतबा सितारे में देखा। कितनी मरतबा? 72,000 मरतबा।
हजरत जिब्रील अमी ने सितारे में देखा है, 24,000 मरतबा जमी पे देखा। बेलिकाए यार चैन आ जाता अगर, यूं ना आते बार बार जिब्रील सिदरा छोड़कर। 24,000 मरतबा जमीन पर, 72,000 मरतबा आसमानों के तारे में, मगर पहचान न पाए। जब पूछा था रसूल पाक ने, जिब्रील मुझे कैसा पाया? एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाह उमम तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने, आफा कहा गर्वी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, महरे बता वर्जी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। या रसूलल्लाह, मशरिक को मगरिब को छान डाला, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। नूरी मखलूक का सरदार कह रहा है, आप जैसा देखा ही नहीं। और आजकल के लोग कह रहे हैं हमारी तरह है, तो अपने चेहरे को आईने में देख ले पहले, अपने चेहरे को आईने में देख, और देख कर तौबा कर, और कह आप जैसा नूरी बशर कोई है ही नहीं, आप जैसा नूरानी सरापा नूर थे। और ऐसा नूर था इमाम अहमद रजा ने तो हमें अकीदा ही दे दिया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये अकीदा सिर्फ हमारा नहीं है, एक और बात भी बता दूं इस पर, यह अकीदा सिर्फ हमारा नहीं है, किसका है वो सुने। ईसाइयों ने, मुनकिरों ने बाइबल यानी इंजील, जबूर, तौरेत को मिलाकर एक पूरी किताब लिखी है, पूरी अंग्रेजी में, इसे वो बाइबल कहते हैं, बाइबल। उसमें उन्होंने हवाला दिया इस बात का, लिखने वाले गैर हैं, छपी है गैरों के वहां से, मगर सुने लिखा क्या है इसमें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वाले 70,000 उम्मतियों को जमा किया, सबको बिठाया, बिठाने के बाद खिताब किया, और जब बयान करने लगे ना, तो आप मुझे बताइए उम्मती के सामने नबी किसकी बात करेगा? अपनी उम्मत की, या अपनी बात रखेगा, या किसी और चीज की बात रखेगा? मगर उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मजमे में ईसा के मानने वाले मौजूद, ईसा है, तकरीर ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, मजमा ईसाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतियों का है, मगर बात हो रही है मोहम्मद आखिरी ज़मा की, नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के चर्चे हो रहे हैं। क्या कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों से कह रहे हैं, ए लोगों अब मैं जा रहा हूं, यानी मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं जा रहा हूं, अनकरीब मैं चला जाऊंगा। लोगों ने पूछा क्यों? उम्मतियों ने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? कहा अब वक्त आ चुका है कि अल्लाह का नूर पहाड़ों से उतरने वाला है, वो वक्त करीब है कि अल्लाह का नूर पहाड़ से उतरने वाला है। क्या मतलब? सिर्फ नूर का अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, नबियों का भी अकीदा था कि अल्लाह के नूर हैं आप, तभी तो कहा अल्लाह का नूर पहाड़ से उतरने वाला है। अब यहां पहाड़ से मुराद कोई आम पहाड़ नहीं है, गारे हीरा है, जहां नबी पाक पर पहली वही आई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इससे कबल जब वही नहीं आया, इससे कबल नबी पाक बार बार गारे हीरा पर जाते थे, मगर उस वक्त जब जाते थे गारे हीरा पर, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बन के गए थे, और एक दिन जब उतरे ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के उतरे थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के उतरे थे। तो यहां पहाड़ से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गारे हीरा मुराद लिया। आपने फरमाया अपने मानने वालों से, लोगों अब मैं जा रहा हूं, मेरा वक्त आ गया, करीब है, अल्लाह का नूर पहाड़ों से उतरने वाला है। चंद दिनों के बाद फिर वही मजलिस जमी, 70,000 लोगों का मजमा, तवज्जो से सुनना, 70,000 लोगों का मजमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आए, तकरीर शुरू की, फिर कहने लगे, ए लोगों अब मैं जा रहा हूं। पहले कहा वक्त आ चुका, अब क्या कह रहे हैं? अब तो जा रहा हूं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा बेकरारों का करार कैसे आएगा, बेचैनों को चैन देने वाला कैसे आएगा,
जो लोगों के दिलों का सुकून है, करीब है, वो आने वाला है। जब आपने ये कहा ना, तो आपके मानने वालों ने आपसे सवाल किया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, तुम जिनकी तारीफ हमारे सामने बयान करते हो वो आने वाले हैं। तुम्हारी शान ये है, अब सुनना, तुम्हारी शान ये है कि तुम अगर अंधे पर हाथ लगा दो तो अंधा बीना हो जाए, यानी देखने वाला हो जाए। तुम अगर कोढ़ पे हाथ लगा दो, बर्स बीमार वाले पर हाथ लगा दो तो बीमार शिफा पा जाए। तुम अगर मुर्दे को लात मार के कुम बिइज़्निल्लाह कह दो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। यह आपकी शान है। और आप जिनके चर्चे हमारे सामने कर रहे हो कि मैं जा रहा हूं वो आने वाला है, अब आप ये बता दें, आपकी शान तो ये है, आपकी शान तो ये है कि आप अंधे पर हाथ लगा दे वो आंख वाला हो जाए, आप बीमार को हाथ लगा दे वो शिफा पा जाए, आप मुर्दे को लात मार के कुम बिइज़्निल्लाह कह दे वो जिंदा हो जाए। तो आप जिनकी तारीफ हमारे सामने कर रहे हो उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अब सुने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मचल जाओगे आशिकों, और जब मचलो ना तो नियत करना इस बार धूमधाम से ईद मिलाद मनानी है इंशाअल्लाह। जिसके चर्चे ईसा अलैहिस्सलाम ने किए हो उसका जश्न मनाने में फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम उसी नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती हैं, उसी नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों सुनो, मैं जमीन पर, बीमार भी जमीन पर है, मैं जमीन पर, बर्स की बीमारी वाला भी जमीन पर, मैं जमीन पर, मुर्दा भी जमीन पर। मैं हाथ लगाता हूं बीमार अच्छा हो जाता है, मैं हाथ लगाता हूं बर्स वाला अच्छा हो जाता है, मैं मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह कहता हूं जिंदा हो जाता है। मगर वो भी जमीन पर, मैं भी जमीन पर। मगर जिस नबी के आने की मैं बात कर रहा हूं कि वो आने वाला है, जो दिलों का करार होगा बेकरारों का करार होगा, बेचैनों का चैन बनकर आएगा, बेसुकूनों का सुकून बनकर आएगा। वो आम नहीं होगा, उसकी शान तो ये होगी वो पंगूड़े में झूले झुलाता होगा और चांद उसे लोरिया देता होगा, चांद उसे लोरिया देता होगा। और जब उन्होंने सुना तो कहने लगे फिर क्या होगा, कहा ये तो बचपन की बात है, जब जवान हो जाएंगे तो चांद को अपने हाथ से पकड़ लेंगे, चांद को अपने हाथ से पकड़ लेंगे। चांद को अपने हाथ से पकड़ने का मतलब यह है कि चांद के दो टुकड़े कर देंगे। अब यहां रुक कर चंद बातें बता दूं आपको। कोई कह सकता है ये तो बाइबल की बात की है, गेरों ने छापी है, गेरों ने लिखी है, हो सकता है कोई एतराज कर दे, दलील लाओ इस पर। मैं कहता हूं आखिरी बात का हिस्सा हदीस पाक में भी मौजूद है, बोलो सुभान अल्लाह। खुद आपके चचा, नबी पाक के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजूर की बारगाह में, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक चीज बचपन में देखी थी, एक चीज बचपन में देखी। बोले क्या? कि आपका झूला झूल रहा है, आपका झूला झूल रहा है, और जहां आपका झूला जाता है चांद वहीं जाता था। आप उंगली उठाए हुए थे, झूला झूल रहा था, आपका झूला इस तरफ जाता था, चांद इस तरफ जाता, आपका झूला इस तरफ जाता था, चांद इस तरफ जाता था। मैं हैरान था, मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी है। किसने कहा? चचा ने कहा। किससे? नबी पाक से। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे चचा सुनो, मैं जब पंगूड़े में, सुनना तवज्जो के साथ, मैं जब झूले के अंदर रोने की तैयारी करता था कि बस रोऊं रोऊं, इससे पहले चांद मुझे लोड़िया देकर हंसाता था। अब ये बात कौन कह रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने चचा से। बचपन में मैं जब रोने की यानी तैयारी थी कि बस अब रोना है, इससे पहले चांद मुझे लोड़िया सुनाता था। एक बात यहां रुक के आपको बता दूं ताकि शान मोहम्मदी समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चे तो सबके जोली में झूलते हैं, माँ सबकी लोड़िया देती है। लोड़ी किसे कहते हैं पता है? किसी चीज को गा कर, जैसे आज कल हम पढ़ते हैं ना, अक्सर पढ़ा जाता है, काश के सबकी माँ यही पढ़े हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, है ना, ये पढ़ के बच्चों को नींद आ जाती है,
वो खा लेता है, वो पी लेता है, इसी को लोहड़ी बोलते हैं। लोहड़ी देना, लोहड़ी देकर सुलाना, लोहड़ी देकर सुलाना। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आशिकों की बात कर रहा हूं मैं, एक सवाल का जवाब दें, मचल जाओगे आप। इस मोहल्ले में छोटा बच्चा, 2 दिन का बच्चा सो रहा है, और इस मोहल्ले में मां बैठी है, इस मोहल्ले में सो रहा है, क्या मां उस मोहल्ले से लोहड़ी सुनाएगी या करीब बैठ के सुनाएगी? करीब बैठ के ना, लोहड़ी करीब से सुनाई जाती है, दूर से नहीं सुनाई जाती है, दूर से नहीं सुनाई जाती है। कि बच्चा इस मोहल्ले में, मां वहां से लोहड़ी दे, बच्चा वैसे ही रोता रहेगा। लोहड़ी देने का कोई फायदा ही नहीं है, लोहड़ी का कोई फायदा ही नहीं है। लोहड़ी उस वक्त मोतबर है जब करीब हो, बच्चा सुनता हो, माँ का आवाज, माँ की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है, तब उसे सुकून मिलेगा, तब उसे सुकून मिलेगा। क्योंकि वो आवाज सुन सुन के आदी हो चुका है, माँ की आवाज सुन सुन के आदी हो चुका है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नबी पाक सैयदा आमीना के घर में लोहड़ी गुड़ रहे हैं, सैयदा आमीना के घर में पंगुड़े में झूला झूल रहे हैं, और चांद आसमान पे। चांद कहां है? आसमान पे। कितना दूर है पता है? साइंस कहता है 1,24,000 मुरब्बे किलोमीटर दूर है जमीन से चांद। 1,24,000, ये साइंसों की तहकीक, 24,000 किलोमीटर मुरब्बे पे दूर है। वहां से चांद लोहड़ी दे रहा है, यहां मुस्तफा मुस्कुरा रहा है। बचपन की बात कर रहा हूं, बचपन में इतनी दूरी से सुन रहे हैं। मैंने अपने मानने वालों से, आशिकों से कहा, आशिकों घबराओ नहीं, मदीना तो बस यहां है, यहां है, बस ये है मदीना, ये नजदीक है मदीना। 1,24,000 किलोमीटर से मेरा नबी बचपन में लोहड़ियां सुन सकता है, तो इंडिया से मदीना तो करीब है, यहां से या नबी सलाम अलैका नहीं सुन सकता। ये कैसे बदबख्तों ने तुम्हें अकीदा दे दिया? ये अकीदा अहले सुन्नत आशिकों का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नबी पंगोड़े में बचपन में इतनी दूरी से चांद की लोहड़ियां सुन सकता हो, क्या वो अपने आशिकों का सलाम नजदीक से नहीं सुन सकता? तो बिल्कुल सुन सकता। नूर थे ना। अब आप देखें, तवज्जो करें, एक और बात बता दूं नुक्ते की। सूरज और चांद चेहरा देख के रोशनी नहीं देते, वो चेहरा देखकर किसी को रोशनी भी नहीं देते, कोई चीज देते भी नहीं। जो खुद अपना दरवाजा बंद कर ले तो धूप नहीं आएगी, जो दरवाजा खोल दे धूप आएगी। वरना सूरज किसी से दुश्मनी नहीं करता, सूरज किसी से दुश्मनी नहीं करता है। मगर जिस वक्त चांद लोहड़ी दे रहा था, नबी पाक का जहां झूला घूम रहा है, वहीं चांद भी जा रहा है, जहां उंगली जा रही है वहां चांद भी जा रहा है। आप मुझे बताओ, उस वक्त चांद की नजर जमीन के 7 बर्रे आजमों पर थी। जमीन पर 7 बर्रे आजम है। कितने? 7 बर्रे आजम। उसमें एशिया बर्रे आजम के अंदर अरब आता है, एशिया बर्रे आजम में अरब आता है। तो दुनिया के 7 बड़े बर्रे आजम में से चांद की नजर एशिया बर्रे आजम पर थी, और एशिया में भी अरब पर थी, अरब में भी मक्के पर थी, मक्के में भी लाखों घर थे, मगर सैयदा आमीना के घर पे थी। और सैयदा आमीना के घर में भी कई चेहरे थे, मगर उसकी नजर चेहरे वद्दुहा पर थी। गुलामी करनी हो तो ऐसी करो, गुलामी करनी हो तो ऐसी करो कि चांद भी तकता रहे तो रुके वद्दुहा को तकता रहे, चांद भी देखता रहे तो रुके वद्दुहा को देखता रहे। यानी वो इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक ही पर तवज्जो मरबूज किए हुए, वो है नबी पाक की जात, वो है नबी पाक। नूर थे न मेरे आका, सरापा नूर थे। ऐसे नूर के लोगों ने तो हमको एतराज कर दिया। एतराज करते हैं कि अक्ल, ये दिमाग में जो अक्ल है ना, वो नूर है, नजर नहीं आती है, दिखती नहीं है। हिदायत नूर है। कभी आपने हिदायत को देखा? हिदायत कैसी होती? नहीं। नूर है। ईमान नूर है, कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा। हिदायत, ईमान, अक्ल नूर है, दिखते नहीं।
कुछ लोग कहते हैं हमसे, इससे पता चला जो नूर होता है वो दिखता नहीं। हुजूर तो दिखते थे, हुजूर तो दिखते थे, नूर कैसे हुई? मैंने कहा पागल सुन, बात चीजें वो होती है जो दिखती है, बाज वो होती है जो नहीं दिखती। अक्ल नूर है, नहीं दिखती है। हिदायत नूर है, नहीं दिखती है। ईमान नूर है, नहीं दिखती है। आंखों की रोशनी नूर है, नहीं दिखती है। और सिर्फ मेरे और आपकी आंखों की नहीं, जानवरों की आंखों की रोशनी भी नूर है, मगर दिखती नहीं। मगर चांद और सूरज भी नूर है, दिख रहे हैं। चांद और सूरज भी नूर है, दिख रहे हैं। और इन सब को सदका मिला है मेरे आका के नूर का। मेरे आका नूर अला नूर है, आला नूर है। जब दुनिया के बाज नूर नजर आते हैं, बाज नहीं आते, तो मेरे आका तो आला नूर है। सिद्दीक को नजर आते हैं, बूजहल को नजर नहीं आते। उमर को नजर आते हैं, उतबा को नजर नहीं आते। उस्मा को नजर आते हैं, शेबा को नजर नहीं आते। अली को नजर आते हैं, वलीद बिन मुगीरा को नजर नहीं आते। वलीद बिन मुगीरा को नजर नहीं आते। क्यों? कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। ये नहीं देख पाते। क्या आपने नहीं सुना नबी पाक ने जब हिजरत के वक्त हजरत मौलाए कायनात को सुलाकर, जब कंकरिया लेकर सूरह यासीन की तिलावत करके जब उनके सरों पे मारी थी मुनकिरों के, तो क्या हुआ था? नबी पाक उनके बीच से निकल गए, किसी को दिखे ही नहीं। बीच से निकल गए, दिखे ही नहीं। पता चला आज अगर तुम नूर न देख सको तो समझ जाना कंकरी लग चुकी है, कंकरी लग चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बशर न मानना भी कुफ्र, नूर न मानना भी कुफ्र। नूरानियत का इनकार भी कुफ्र है, बशरियत का इनकार भी कुफ्र है। हम बशर भी मानते हैं, हम नूर भी मानते हैं। बशर मानते कैसा? कामिल बशर। नूर मानते कैसा? सरापा नूर, सर से लेकर पांव तक आप नूर थे। एक और मिसाल से समझना। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला एक दिन जा रहे थे, आपका साया जमीन पे पड़ रहा था। एक यहूदी आया और आपके साये को पेड़ से मारने लगा, रोंदने लगा, गुस्सा उतारने लगा। आज भी यहूदी फारूक आजम से बड़े नाराज हैं। आज के यहूदी भी बड़े नाराज। अब वो गुस्सा किस पे उतार रहा है? साये पे। पहले हदीस सुन ले। एक उसूल है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा नजरिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया न सूरज में पड़ता था, न चांद की चांदनी में पड़ता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया न सूरज की रोशनी में पड़ता था, न चांद की चांदनी में पड़ता था। फारूक आजम कहने लगे, जब वो यहूदी मेरे साये को लात मारने लगा, गुस्सा उतारने लगा, अपनी भड़ास उतार रहा था, मैं तभी दिल में सोच रहा था, ए अल्लाह, मैं जान गया कि तूने अपने महबूब का साया क्यों नहीं बनाया है। अपने महबूब का साया क्यों नहीं बनाया, मैं समझ गया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, आदमी जब धूप में निकलता है तो उसका साया जमीन पे गिरता है, और साया होता है बिल्कुल लतीफ, नाजुक। कैसा होता है? नाजुक। जिस्म होता है सकीफ, मोटा, ताजा, वजन वाला। साया होता है दुबला, पतला, यानी कोई उसमें हल्कापन, लतीफ, बिल्कुल नाजुक। मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, साया लतीफ होता है, जिस्म सकीफ होता है। और नबी पाक से ज्यादा लतीफ कोई था ही नहीं। आपके जिस्म अथर से ज्यादा लतीफ कोई था ही नहीं, तो साया बनता कैसे? साया बनता तो क्या होता? इससे वो लतीफ हो जाता। और नबी पाक के जिस्म से लतीफ कोई था ही नहीं, तो रब ने साया बनाया ही नहीं। मगर इश्क का इमाम लिखता है, साया था मगर रब ने उसे कहां रखा? सुनो, मादूम न था साया शाहे शकले, इस जात की आमाजगा थे जाते हसनैन।
तमसील ने इस साए के दो टुकड़े किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, और आखिरी में तो अकीदा दे दिया, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग पूछ देंगे, नूर खाता नहीं है, नबी पाक ने क्यों खाया? नूर तो खाता नहीं है, नबी पाक ने क्यों खाया था? जब ये सवाल कोई करे ना तो कहना, जब कोई चीज हैयत बदल दे ना तो उसे खाना पड़ता है। मिसाल दे रहा हूं, जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन ने जादूगरों को भेजा था, जाओ जादूगरों, जादूगर आए आपके मुकाबले में लड़ने के लिए, जादू दिखाने के लिए। जब वो आपके मुकाबले में आए तो उनके हाथ में डंडे थे, और डंडा किसका होता है? लकड़ी का। किसका होता है? बुलंद आवाज से बोले, किसका होता है? लकड़ी का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में भी ऐसा था, और ये ऐसा भी किसका था? लकड़ी का था। किसका था? लकड़ी का। मगर जैसे ही जादूगरों ने लकड़ी रखी, सारी लकड़ियां सांप बन गई। क्या बन गई? सांप। अब तक लकड़ी थी, हैयत बदल के सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा भी रख दिया। ये कोई बाप दादा का किस्सा नहीं है, कुरान भी इसको बयान करता है। हाँ, ये कुरान की तफसीर भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना डंडा, अपना असा रख दिया, और जब रखा ना, वो बड़ा अजदा बन गया। वो असा अजदा बना, और बनने के बाद कुरान कहता है वो सारी रस्सियों को, सारे सांपों को निगल गया, खा गया। जब खा गया तो फिर वापस आपने पकड़ा, वापस डंडा बन गया। पता चला जब तक मूसा के हाथ में था डंडा था, मूसा ने रखा, सांप बन गया। सांप बना, खाया भी, खाया भी। सांप बना तो खाया भी, और जब खा लिया आपने उठाया, फिर डंडा बन गया, फिर डंडा बन गया। पता चला हैयत अगर बदले तो खाना पड़ता। जब तक नूर कुदसी था, नूर कुदसी था, और यही नूर जब बशर के लिबास में आया, बशर के लिबास में आया, तो खाना पड़ा। और खाना इसलिए नहीं खाया कि आप खाने के मोहताज थे, बल्कि खाना आपका मोहताज था। आप खाने के मोहताज नहीं थे, खाना आपका मोहताज था। इसकी दलील यह है कि जिसको मेरे आका ने मुंह से लगा लिया वो हलाल व तय्यब हो गया, वो जायज हो गया, और जिसको मेरे आका ने अपने से दूर कर दिया वो हराम हो गया, वो नाजायज हो गया, वो खबीस हो गया। आपने रोटी खाई, रोटी हलाल हो गई, रोटी तय्यब हो गई, रोटी पाकीज़ा हो गई, रोटी जायज हो गई। आपने शराब को अपने मुंह के करीब तक ना लाने दिया, बल्कि कह दिया मना है। आज पूरी दुनिया उससे घिन कर रही है। पता चला जिसको मेरे आका ने अपने मुंह से लगा लिया वो हलालो तय्यब हो गया, और जिससे आपने अपने मुंह से दूर कर दिया वो हराम हो गया, वो खबीस हो गया, वो नाजायज हो गया। पता चला आप खाने के मोहताज नहीं थे, खाना आपका मोहताज था। खाना आपका मोहताज था, बस खाया इसलिए ताकि हम निकम्मों को खाना आ जाए, पिया इसलिए ताकि हमें पीने का तरीका आ जाए। एक सवाल और हो सकता, वो ये, नूर थे तो शादी क्यों की? नूर थे तो शादी क्यों की? इसका जवाब भी सुन लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया जन्नत के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया हमने तुम्हारा निकाह जन्नत की हूरों से, जो गोरी गोरी और मोटी मोटी आंखों वाली है, इससे हमने तुम्हारा निकाह कर दिया। किसका निकाह? हमारा। आप मुझे बताएं, आप कौन है? किससे पैदा हुए? खाक से। आप खाकी हैं। हूर कौन है? नूरी है। हूर कौन है? नूरी है। आपका निकाह इनसे हो सकता है, आपका निकाह इनसे होगा कब? जन्नत में। रब कह रहा खाकियों का निकाह नूर से होगा। इसी तरह रब ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया।
ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. کیا مطلب؟ جب ہم جیسے خاکیوں کا نکاح نوری مخلوق سے ہو سکتا ہے تو نور علی نور کا نکاح زینب و عائشہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدیجہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بشر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ الغرض علماء فرماتے ہیں جب ان کا ہو سکتا ہے، ہم جیسوں کا ہو سکتا ہے، تو نبی پاک یعنی نور کا نکاح بشر کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اعتراض کرنے میں تو آسان ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کے سب اس بات پر متفق ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نور بنا کر بھیجا. اور ایسے نور کہ نوری مخلوق بھی سب بسب کھڑی ہے. آپ نور اس لیے ہیں تاکہ نوری مخلوق بھی آپ سے فیض پا لے، اور آپ بشری لباس میں آئے تاکہ ابو بکر و عمر بھی فیض پا لے، اور نور میں بھی آئے تاکہ جبریل و میکائیل بھی فیض پا لے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آنے والا میلاد اس نبی کا ہے جو نور بھی ہے، بشر بھی ہے. ایسے نور کہ آپ جیسا کوئی نوری نہیں، اور ایسے بشر کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا نور بنایا اور آپ کو کامل بشر بنایا. یعنی نور قدس جب بشر کی شکل میں یہاں آیا اس لیے تھا تاکہ ہمیں آپ کی طرح چلنا، آپ سے دیکھ کر ہمیں چلنا، بولنا، کھانا پینا تمام طریقے ہم سیکھ لیں. علماء فرماتے ہیں نبی پاک یہاں بشری تقاضوں کے ساتھ اس لیے آئے تاکہ ہمیں اٹھنا آ جائے، بیٹھنا آ جائے، چلنا آ جائے، کھانا آ جائے. تو اے لوگوں سنو، آج ہم جو 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں، یہ اس نبی کا جشن ولادت ہے جس کی تاریخ، جس کی سیرت کامل سیرت ہے، اکمل سیرت ہے. جس سیرت پر جس نے بھی عمل کیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی. تو 1500 سالہ جشن ولادت منانے سے پہلے پکی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب سنت نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم اپنے معمولات سنت کے مطابق کیا کریں. بولو انشاءاللہ. ہاں، تبھی انشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت کا ہم فیض پائیں گے. ورنہ دنیا کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نور نہیں مانتے. نہ مانو. ہم الحمدللہ آپ کو نور مانتے ہیں، اور ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کل بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ خود سراپا نور تھے اور تھا کھلونا نور کا. ہاتھ انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.